Hello everyone. Today myself Aman Jambal will present you about or welcome you all in the class of chemistry. Today we will learn about a topic from the class 12th of chemistry from chemistry NCRT book, and the topic called it is a whole chapter from chapter number which is chapter number 3. जो chapter number 3 है हमारी जो 12th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. सो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. सो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में. सो yes, so basically electrochemistry is the combination of electric just wait a moment. Yes, so basically it is a combination of electric plus electric plus chemical or chemistry or chemical, you can say chemical. So we know that electric word, as the word suggest कि electric क्या होता है. electric होता है चार्ज का जो मूवमेंट होता है, and which results into the a particular force, or which results into a new science called electrical or electric current. We know that current is carried out by the movement of electrons in a particular direction under the influence of applied force. And similarly, in the chemical word says that the electrons movement is responsible for chemical potential or forces. So ultimately होता क्या है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लस केमिकल एनर्जी का जो कॉम्बिनेशन होता है, दैट, और अल्टीमेटली इन दोनों के बीच में जो इंटर कन्वर्जन होता है, दैट इज नोन एज द electrochemistry or the branch of chemistry. So now, as per the definition of electrochemistry, it is that branch of science or that branch of chemistry which deals with the study of production of electricity from energy released during spontaneous chemical, just wait in color, yes, spontaneous, which released from the spontaneous chemical reactions, and the use of electrical energy to bring about non-spontaneous chemical transformations. Ultimately we can say that the electrical energy just wait, yes, so electrical energy is converted into chemical energy, and chemical energy is converted into electrical energy. But we have to notice one thing, that whenever electrical energy is converted into chemical energy, the process is called non-spontaneous. This process is called non-spontaneous, and by moving from chemical energy to electrical energy, this process is called spontaneous in nature. Process is called spontaneous in nature. So before going into the field of electrochemistry, there are some basics required or prerequisites that should learned or already known to you, because if you do not have knowledge about these terms, then there is a difficulty in understanding the concept of electrochemistry. So ये terms है क्या क्या. यहाँ पे आता है redox reaction में जैसे ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स केमिकल इक्वेशंस. अगर हमें इन चीज़ों के बारे में पता होगा तो हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा डिटेल स्टडी अंडरस्टैंड हो जाती है. नहीं तो हम बहुत ज़्यादा आगे फंस जाते हैं, और फंस जब जाते हैं तो हमें बार बार वहाँ पे दिक्कत हो जाती है. अगर आप इन टर्म्स का रेफरेंस लेना चाहते हैं तो ये सारे जो 8th चैप्टर NCERT book
ऑफ 11th क्लास केमिस्ट्री। 11th क्लास की जो केमिस्ट्री की बुक है वहाँ के 8th चैप्टर में रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, वो सारे आपको वहाँ पे पता चल जाएंगे। अगर आप वहाँ से इनको देख लेंगे तो आपको अच्छा हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा मैं फिर भी आइडिया दे देता हूँ दैट व्हाट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। सो रिडॉक्स रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। इट मीन्स that reduction and oxidation simultaneously occurring at the same time. And the oxidizing and reducing agent, what are those? So oxidizing agents which help to carry out oxidation by reducing itself, and reducing agents are the agents which help in the reduction by oxidizing itself. And oxidation number, basically it is known as the oxidation state, or how much or how in terms of quantitatively what is the value of oxidation that have been happened, or reduction that have been done in the or particularly by the each element. So that is known by oxidation number. And when you write a redox chemical equation, you have to balance it, because redox reaction in terms of electronic concept is the moment of, because we know that oxidation is the loss of electrons and reduction is the gaining of electrons. So that is why we should know that there is an involvement of electron transfer. And if you do not balance this equation, so ultimately this is against the law of conservation of mass or law of conservation of energy, because neither electron can be created nor it be destroyed. It can be converted from one form to other, or it gets transported, or ultimately it gets movement, it have movement from one atom to another or one element to other. Then importance of electrochemistry. Now this is the main question, why do we study electrochemistry? अगर हमें किसी चीज का एक चीज हमेशा याद रखनी है, that in science there is no topic without any application. हर एक टॉपिक की साइंस में एप्लीकेशन होती है। हाँ, उसका जो रेंज होती है वो कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। जैसे कुछ एक लॉज जो होते हैं वो यूनिवर्सली वैलिड होते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस होती हैं, बट कुछ एक लॉज जो होते हैं उनकी यूनिवर्सली एप्लीकेशंस नहीं होती, उनकी कुछ एक सर्टेन पीरियड में या सर्टेन रेंज में होती है या सर्टेन फील्ड में ही होती हैं। बट अगेन ईच एंड एवरी टॉपिक इन दिस साइंस has its significance or application. Now why do we study the electrochemistry? So basically the study of electrochemistry will enable us to know some topics or some important characteristics about the metals or movement or behavior of metals. So for example, production of metals in the refinery like sodium, magnesium, calcium and aluminium. So these are all the applications of electrochemistry. फाइनली द इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फॉर एग्जाम्पल जो हमारे घरों में जो पाइप्स होती हैं, जो हमारे घरों में पाइप्स होती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, उसके ऊपर एक कोट चढ़ा होता है। कोट यानी कि वो वाइट कलर की होती हैं, बट वो होती तो वो आयरन की हैं। आजकल तो प्लास्टिक की आ रही हैं, उसको अगर आप रहने दें तो जो लोहे की पाइप होती है उसमें एक वाइट कोट चढ़ा होता है। अल्टीमेटली वो क्या होता है, जिंक होता है, बिकॉज वी नो दैट आयरन जब ऑक्सीडेशन होती है उसके, आयरन जब ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो उसमें क्या होता है, Fe2O3 बन जाता है, आयरन ऑक्साइड। और ये क्या हो जाता है, इससे जो उसकी स्ट्रेंथ होती है ना वो वीक हो जाती है। आयरन की जो स्ट्रेंथ होती है, जो मेटालिक स्ट्रेंथ होती है वो वीक हो जाती है। तभी तो कहते हैं ना, जंग वाली चीज़ जो होती है वो ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाती है। तो हमें आयरन को जंग से बचाना होता है। अब जंग से बचाने के लिए या रस्टिंग से बचाने के लिए देयर आर वेरियस मेथड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उसके ऊपर ग्रीस चढ़ा देते हैं वो आता है मैनुअल काम, या फिर आप उसके ऊपर पेंट कर देते हैं वो भी आता है मैनुअल काम। सिमिलरली वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो सकती है। और ज़रूरी नहीं इलेक्ट्रोप्लेटिंग सिर्फ रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रोटेक्ट करेगी, वो बहुत जगह करती है। इवन अगर आपको मैं एक बात बताना चाहूँ कि जो सुपर कार्स होती हैं या फिर जो बहुत हाई कॉस्टली कार्स होती हैं, जो रेस कार्स होती हैं, उनके जो मटीरियल्स होते हैं, बिकॉज वो करोड्स में होती हैं, तो उनकी जो मटीरियल होता है उनमें जो पेंट होता है वो गैल्वेनाइज्ड वे में या इलेक्ट्रोप्लेटिंग वे में होता है। यानी कि जो कार का जो ढांचा होगा, जो जैसे मान लो ये कार का ढांचा है, ठीक है, ये लोहे का बना होगा, इसको क्या करेंगे, एक टैंक में डाल देंगे। इसको एक टैंक में डाल देंगे। टैंक में क्या होगा, आयनाइज्ड, यानी कि जो आयनाइज्ड
सोल्यूशन होगा या पेंट होगा वो, और इसके ऊपर भी आयंस क्रिएट किए जाएंगे चार्ज, सो उसके कारण ये जो होता है ये इसके ऊपर चिपक जाएगा आयनाइज्ड वे में। तो इससे क्या होता है, पेंट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चिपक जाता है, यानी कि उसमें कुछ खामी नहीं रहती है या कुछ एरर नहीं रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। फाइनली प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। नाउ एक और चीज़ हम देखते हैं कि हम कोई भी चीज़ जब अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज वी एक्सट्रैक्ट ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम अर्थ सेल्फ, हम धरती से ही कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो प्योर फॉर्म में नहीं होता है। इवन आप देखेंगे, अगर आप इसको केस स्टडी या इसके ऊपर असाइनमेंट बनाना चाहते हैं, या जब बनाएंगे या इसके ऊपर जब थोड़ा सा थोड़ा रिसर्च करेंगे थ्रू इंटरनेट और वेरियस अदर रिसोर्सेज, तो आपको पता चलेगा जो आयरन होता है जब वो ओर से निकलता है तो वो क्या होता है, एक इम्प्योर वे में होता है, इम्प्योर नेचर होती है या इम्प्योर स्टेट होती है, उसकी इम्प्योर स्टेट होती है। हमें उसको क्या करना पड़ता है, प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन। अब मान लो आप मार्केट में गए, आपने बोला कि मुझे सरिया चाहिए या लोहे का कोई मटेरियल चाहिए, तो वो ये तो है नहीं कि जो ओर से निकाला हुआ है वही आपके ऊपर ढेर रख देगा, उसमें तो मिट्टी भी लगी होगी और भी मेटल्स लगे होंगे, ठीक है, तो कोई भी उसके पैसे नहीं देगा, ठीक है। तो हमें जो चीज़ डिजायर्ड प्रोडक्ट होता है वो प्योरीफाइड फॉर्म में चाहिए होता है, और उसकी प्योरिफिकेशन जो होती है मेटल्स की, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फाइनली कमिंग अप टू द बैटरीज एंड सेल्स यूज्ड इन वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल कार्स हो गई, हमारी घड़ी हो गई, या फिर हमारे टॉर्च हो गई, वहाँ पे बैटरीज यूज़ की जाती हैं या सेल्स यूज़ किए जाते हैं। इनका जो प्रिंसिपल होता है, इट इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंस और मेन इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो होता है वो बैटरी और सेल्स में ही इंक्लूड किया जाता है। Now coming up to the principle. Now what is the principle? The main principle of electrochemistry gives the relationship between the generation of electricity and associated chemical changes in a reaction and vice versa. Now it means why do we put vice versa? कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो केमिस्ट्री या केमिकल चेंजेस के कारण ही होती है प्रोड्यूस। इलेक्ट्रिसिटी को आप सप्लाई करके केमिकल चेंजेस को भी कैरिड आउट करवा सकते हैं। सो दिस इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब जैसे मान के चलते हैं, जस्ट वेट, यस, अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक सेल बनाया हुआ है हमने, यहाँ पे डिफरेंट हमने सॉल्यूशन लिए होते हैं, ठीक है। ये हम थ्योरेटिकल डायग्राम बना रहे हैं, प्रैक्टिकल भी आगे पता चलेगा आपको। तो हमने जब स्टार्टिंग में भी डायग्राम देखी थी, कुछ इस तरीके की दो रोड्स थी और वो कनेक्टेड थी दिस वायर, ठीक है, ये वायर के साथ कनेक्टेड है, और साथ में एक चीज़ जो होती है वो होती है सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज के थ्रू भी ये जो कनेक्शन होता है ये कंडक्टिंग होता है। तो अल्टीमेटली होता क्या है, यहाँ पे जो केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो रही होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब केमिकल एनर्जी कैसे होगी, यहाँ पे केमिकल चेंज होगा। क्या होगा, यहाँ पे केमिकल चेंज होगा। केमिकल चेंज कैसे होगा, यानी कि जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो चेंज होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स गेट्स चेंज्ड। अब किस तरीके से चेंज होंगे, अगर मान लो यहाँ पे हमने जिंक लिया तो जिंक कॉपर तो बन नहीं जाएगा। जिंक में क्या हो सकता है, जिंक अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बदलेगा। अब अगेन मैंने पहले भी बताया था कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का पता होना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर का पता होना चाहिए। अगर आपको वो चीज़ें नहीं पता होंगी तो वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। मान लो यहाँ पे जिंक जो है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी कि इसके पास 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं डी में, ठीक है, ओवरऑल 12 हैं। अब यहाँ पे मान लो ये जिंक 2+ स्टेट में आ जाता है, तो इसने क्या किया, दो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया। अब वो जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे घूम रहे होंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जब हमने इसको कंडक्टिंग बना दिया, तो यहाँ पे जब टेंडेंसी होगी किसी एलिमेंट की, मान लो अगर हम कॉपर ही ले लेते हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस में, स्टैंडर्ड एग्जांपल यूज कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में हमने कॉपर लिया है, तो कॉपर जो है वो अगर मान लो 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जरूरी नहीं हमने कॉपर, हम हाइपोथेटिकली इस सिचुएशन को मान रहे हैं, और इसी के ऊपर जो है पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का प्रिंसिपल जो है बेस्ड होता है। नाउ हियर कॉपर 2 पॉजिटिव जो है उसकी टेंडेंसी क्या होगी कि दो इलेक्ट्रॉन्स कम है, दो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं और कॉपर
सॉलिड बना देते हैं, कॉपर सॉलिड, और यहाँ पे ये एक्वस में होता है। तो अब ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से तो नहीं ले पाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे के पास Cu2 पॉजिटिव है। ऐसे तो है नहीं कि Cu2 पॉजिटिव, एक Cu2 पॉजिटिव बोलेगा कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले ले और मैं Cu3 पॉजिटिव बन जाता हूँ और तू Cu पॉजिटिव बन जा, ऐसे तो होगा नहीं। ये एक्सटर्नल सोर्स से ही इलेक्ट्रॉन्स ले पाएगा, और एक्सटर्नल सोर्स जब हमने वायर के थ्रू कनेक्ट करवा दिया है, जब वायर के थ्रू इसको कनेक्ट करवा दिया इससे, तो यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन्स पैदा हो रहे हैं या फॉर्म हो रहे हैं, वो अल्टीमेटली थ्रू दिस वायर विल गेट्स ट्रांसपोर्टेड टू दिस चैम्बर एंड फाइनली गेट्स कंज्यूम्ड बाय कॉपर टू पॉजिटिव आयन, एंड हेंस यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं वो साइमल्टेनियसली वो कंज्यूम भी हो रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ ये याद रखनी है, यहाँ से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट एनर्जी एंड मास का भी हमें ध्यान रखना है, तभी तो बैलेंसिंग करनी पड़ती है। एंड सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, इस वायर के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं। अब जब ट्रैवलिंग होती है, वी नो दैट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज द इलेक्ट्रिसिटी, इज नोन एज द इलेक्ट्रिसिटी। तो केमिकल चेंजेस ने अल्टीमेटली क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस किया या इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया, एंड दिस इज द मेन प्रिंसिपल बिहाइंड द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इसका रिवर्स भी सही हो जाता है, कैसे, अगर हम मान के चलें, जस्ट वेट, यस अब हम मान के चलते हैं सेकंड केस में। अब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हमारे पास पहले से ही है। अब हम क्या करवाना चाहते हैं, केमिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से होता है, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन लिया हुआ है हमने, ठीक है, और यहाँ पे एक्सटर्नल बैटरी ले ली हमने, और यहाँ पे इसको कनेक्ट करवा दिया थ्रू 2 इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, सेम सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये क्या होगा, अब यहाँ पे बैटरी है, तो बैटरी क्या करेगी, यहाँ पे मान लो पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, तो इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट यहाँ पे आएगी और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कंज्यूम हो जाएंगे। बट प्रोवाइडेड यहाँ पे टेंडेंसी होनी चाहिए उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की, तो हमें सोल्यूशन उसी तरीके से लेना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि हम किसी भी सोल्यूशन को ले सकते हैं। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा है। देन कंडक्टर्स क्या होते हैं, सो कंडक्टर्स are the substances that allow electric current to pass through them are known as conductors, and this definition is from 7 standards। क्योंकि 7वीं में ही हमने ये पढ़ लिया होता है कि जो चीज़ें कंडक्टर वही होते हैं, कि अब कंडक्टर यहाँ पे पर्टिकुलरली हम इलेक्ट्रिकल वे में देखेंगे, जरूरी नहीं है थर्मल वे में। हालांकि थर्मल कंडक्टर्स जो होते हैं वो भी एक कंडक्टर्स को शो करते हैं, बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ इलेक्ट्रिकल करंट को जो कंडक्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ जो नई टर्म आएगी, तो वो आएगी आपको इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या, इलेक्ट्रोलाइट्स आपको एक नई टर्म आएगी, इलेक्ट्रोलाइट्स। सो बेसिकली हमने अभी तक पढ़ा होता है मेटालिक कंडक्टर्स, बट एक्चुअली में कंडक्टर्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइट्स। सो मेटालिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, दैट द सब्सटेंसेस व्हिच अलो द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम by the movement of electrons are called metallic conductors। example metals। अब metals क्या हो सकते हैं, सोडियम हो सकता है, आयरन हो सकता है, पोटाशियम हो सकता है, बेरियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, like that। they are also known as the electronic conductors। ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स से भी इनको पहचाना जाता है। Now coming up to the electrolytes, the substances which allow the passage of electricity through their fused state or aqueous solution and undergo chemical decomposition are called electrolytic conductors। example aqueous solution of acid, base and salt। अब यहाँ पे आपको एक बात मान के चलें कि ये जो होते हैं ये सोल्ट या सॉलिड स्टेट में कंडक्टिंग होते हैं, सॉलिड स्टेट में कंडक्टिंग होते हैं। ठीक है, अगर सॉलिड स्टेट में कंडक्टिंग है तो एक्वस में तो होंगे ही होंगे, एक्वस में भी होंगे, बट प्रोवाइड होता है इसके ट्रांसपोर्ट नंबर के ऊपर वैलिड होता है। पर फिलहाल हम मान के चलते हैं ये सॉलिड स्टेट में कंडक्टिंग होते हैं। ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में नहीं होते हैं कंडक्टिंग, दे आर नॉट कंडक्टिंग इन सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन। ठीक है, और सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन में कंडक्टिंग नहीं होते हैं, बट जो उनकी फ्यूज्ड स्टेट होती है ना, फ्यूज्ड स्टेट, उसमें क्या होते हैं वो कंडक्टिंग हो जाते हैं। ठीक है, या फिर जो उसके आयंस होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, तो वो वहाँ पे क्या करते हैं, कंडक्शन शो कर देते हैं। नाउ
इलेक्ट्रोलाइट्स आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स। अभी हमने पढ़ा कि कंडक्टर्स की दो कैटेगरीज है, फर्स्ट वन इज मेटालिक कंडक्टर, सेकंड वन इज इलेक्ट्रोलाइट्स। नाउ इलेक्ट्रोलाइट्स आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स, व्हाई? अब हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, जब हमने बताया कि जब वो फ्यूज्ड स्टेट या फिर जो डिसोसिएशन स्टेट जो होती है वहां पे वो क्या करते हैं, कंडक्टिंग करते हैं। डिसोसिएशन स्टेट में वो क्या करते हैं, कंडक्टिंग कर देते हैं या कंडक्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। सो डिसोसिएशन की डिग्री के ऊपर हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सेकंड वन इज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जहां पे the substance or electrolytes that completely dissociates or ionizes into ions are called strong electrolytes. Examples are HCl, NaOH, K2H, so forth. फॉर एग्जाम्पल जब हम HCl को पानी में डालते हैं प्लस H2O, तो यहाँ पे क्या होता है, H पॉजिटिव आयन Cl नेगेटिव आयन अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, और H पॉजिटिव आयन यहाँ पे भी होता है और OH नेगेटिव आयन यहाँ पे भी होता है। सिमिलरली अगर हम NaOH को डालते हैं तो वो सॉलिड वाटर के अंदर Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, दिक्कत होती है इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर, बट वो फैक्टर अभी हम इग्नोर कर रहे हैं। उस फैक्टर को अगर हम थोड़ी सी देर के लिए अगर इग्नोर भी कर देते हैं तो, बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की आपने डेफिनेशन कुछ इस तरीके से समझनी है कि मान लो अगर आपने 4 ग्राम अगर 100 ग्राम पानी में डाला, ठीक है, तो इसके 4 ग्राम में मान लो 1 ग्राम में मान लो अगर 100 एटम्स हैं तो 4 ग्राम में हो गए 400 एटम्स या मोलिक्यूल्स। तो 400 के 400 के 400 ही क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट्स हो जाएंगे। सो दैट इज व्हाई दे कंप्लीटली डिसोसिएट्स इनटू आयंस, एंड नाउ कमिंग अप टू द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, यहाँ पे जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है वो थोड़ी कम होती है। द इलेक्ट्रोलाइट्स दैट डिसोसिएट पार्शियली, अब यहाँ पे इस वर्ड को ध्यान रखना, पार्शियली यानी कि इनकम्प्लीट। अब इनकम्प्लीट का मतलब ये नहीं होता कि एक एटम जो है वो इनकम्प्लीट है। अगर 100 एटम या मॉलिक्यूल को अगर आप डिसोल्व करते हैं तो उसमें से 50 जो होंगे वो डिसोसिएट हो जाएंगे, 50 नहीं होंगे। ये नहीं है कि 100 ही लगे हैं और 100 ही कंप्लीटली नहीं हो पा रहे हैं, हो जाते हैं बट 50 हो पाते हैं, 50 नहीं हो पाते हैं। एंड व्हाई, बिकॉज यहाँ पे जो चार्ज की सेपरेशन होता है, जो हम केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में हमने क्या पढ़ते हैं कि जो एक होते हैं आयनिक कंपाउंड, एक होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। आयनिक और कोवेलेंट 100% तो होते नहीं है, बट परसेंटेज आयनिक करेक्टर देखा जाता है या परसेंटेज कोवेलेंट करेक्टर देखा जाता है। अगर यूजुअली 90% आयनिक है तो वो 100% डिसोल्व हो जाते हैं, अगर उससे थोड़ा सा कम हो तो वो लेस होते हैं। सिमिलरली अगर कोवेलेंट में भी अगर एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज हो जाता है तो वो इतने ज़्यादा डिसोसिएट नहीं होते हैं, पर्टिकुलरली इन दी वाटर, क्योंकि हम यहाँ पे यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो है वो वाटर को ही मानते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। Now coming up to the cell. So what is a cell? So a chemical cell converts chemical energy into electrical energy and vice versa. अब यहाँ पे हमें क्या confusion हो जाता है, just wait, yes. यहाँ पे हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि सेल जो है एक बायो में भी टर्म होती है जिसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका। क्या बोलते हैं, कोशिका, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिजिक्स में क्या होता है, सेल, इसमें एक बैटरी, इट इज जस्ट लाइक अ बैटरी। सिमिलरली केमिस्ट्री में भी सेल को हम बैटरी ही मानते हैं, क्योंकि अल्टीमेट इसकी आउटपुट जो होती है वो बैटरी की फॉर्म में ही होती है। बट इसकी जो केमिस्ट्री होती है वो बैटरी जितनी सिंपल नहीं होती, क्योंकि केमिस्ट्री तो हमें आयंस का मूवमेंट देखना है ना, जब तक हमें वो नहीं चलेगा पता तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। So ultimately, a chemical cell converts chemical energy into electrical energy and vice versa. The common example is Western standard cell and galvanic cell. So these are two examples of a chemical cell. Finally, coming up to in electrochemistry, cell is also of two types. So जब हम electrochemistry में पढ़ते हैं तो यहाँ पे भी सेल को फर्दर कैटेगराइज कर दिया जाता है। किस वे में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सेकंड इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। देयर कोरस्पॉन्डिंग डेफिनेशन आर आल्सो गिवन, दैट अ डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट chemical energy into electrical energy is known as electrochemical cell, and the electrolytic cell is a device used to carry out non-spontaneous chemical reactions by electrical energy. अब यहाँ पे एक वर्ड इन्होंने यूज किया, non-spontaneous. It is an important word. Why? Because
जो केमिकल चेंजेस नॉन स्पॉन्टेनियस यानी कि सेल्फ अकरिंग नहीं है, नेचुरल नहीं है, उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होती है, तो वो ही फोर्स जो है वो हमें इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, और उसके कारण जो केमिकल चेंजेस आते हैं, सो इट इज होल सेल इज नोन एज द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। आई होप आपको समझ में आ रहा है। देन the different characteristics and their corresponding cell differences are also given in this table, as you can see. Now starting from assembly, अब इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में डिफरेंस क्या होता है और इसके जो कुछ एक पॉइंट्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात आती है असेंबली की। यस, सो जब हम असेंबली की बात करते हैं, थोड़ा ये हो रहा है, ब्लैक ही चूज करता हूँ, हाईलाइट नहीं, ब्लैक ठीक रहेगा। यस, असेंबली, सो कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ सेल कंटेनिंग द सेम और डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स इन द सेम और डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, दो हाफ सेल, जो कि हमने स्टार्टिंग डायग्राम जो होती है वो भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही होता है। यहाँ पे क्या होता है, दो हाफ सेल्स को कंबाइन किया जाता है we having different electrodes in the same or different electrolytes। अब होता क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जब हम दोबारा से अगर डायग्राम, थोड़ा डायग्राम की तरफ, यस, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये एक बीकर है, ये सेकंड बीकर है, या कोई भी इनका कंटेनर है। यहाँ पे क्या लिया जाता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो जरूरी नहीं है सेम होने चाहिए, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। सिमिलरली ये जो होते हैं इनके बीच में रोड्स डिप, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। क्या बोलते हैं इनको, इलेक्ट्रोड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको कैथोड बोला गया, इसको एनोड बोला गया। क्यों बोलते हैं वो हम बाद में बात करेंगे, बट ये दोनों को आपने कलेक्टिवली इलेक्ट्रोड्स मानना है। नाउ इलेक्ट्रोड्स को डिप किया जाता है। थर्ड चीज जो इंपॉर्टेंट होती है वो आता है सोल्ट ब्रिज। दिस इज कॉल्ड एज द सोल्ट ब्रिज। ये जो इन्वर्टेड यू शेप है ना, जो दोनों को कनेक्ट कर रही है, इट इज कॉल्ड एज द सोल्ट ब्रिज। और यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। और यहाँ पे ये क्या होते हैं, ये कॉटन प्लग्स होते हैं। क्या होते हैं, कॉटन प्लग्स। इससे क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ये इन सॉल्यूशन में नहीं आता, इस सॉल्यूशन में नहीं आएगा। And finally, these two electrodes are connected by a wire and a voltmeter or an electronic device which can be a ammeter or a galvanometer. Now, according to assembly, so the combination of two half cell containing the same or different electrodes in the same or different electrolytes. So electrolytic cell, a single cell containing the same electrodes present in the same electrolyte, and this is the assembly of an electrolytic cell. Now, yes, this is the assembly of a electrolytic cell. Here you can see that a single container, here is a single container, and जो उसके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वहाँ पे टू कंटेनर्स होते हैं, और इसमें क्या होती है, सेम इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट इन द सेम इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स होती हैं वो सेम होती हैं, प्रेजेंट इन द सेम इलेक्ट्रोलाइट। So this is the major difference between electrochemical cell and a electrolytic cell in terms of assembly. Now coming up to the nature of electrodes. Nature of electrodes, anode is negative and cathode is positive. यहाँ पे क्या होता है, जब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या होता है, किस तरीके से चलता है। अब एक यूनिवर्सल लॉ है, या यूनिवर्सली हमें पता होता है कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से मूव करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, एंड फाइनली करंट किस तरीके से मूव करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। नाउ यहाँ पे जो रोड नेगेटिवली चार्ज होती है, ठीक है, जो रोड नेगेटिवली चार्ज होती है वो होती है एनोड, एंड जो पॉजिटिवली चार्ज होती है वो होती है कैथोड, ठीक है। सिमिलरली जो इसका ऑपोजिट सिनेरियो है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में फाइंड आउट होगा, यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होगा। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो चीज पॉजिटिव होती है वो एनोड हो जाती है, और जो चीज नेगेटिव होती है वो कैथोड हो जाती है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा है। जो चीज नेगेटिव होती है, सॉरी पॉजिटिव होती है वो एनोड हो जाती है, और जो चीज नेगेटिव होती है वो कैथोड हो जाती है। नाउ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब मैंने ये भी बता दिया कि हमेशा मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है, करंट को कैरी आउट करने के लिए मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो अगर यहाँ पे एनोड नेगेटिव है तो एनोड टू कैथोड जाएगा,
और यहाँ पे क्या है एनोड, सॉरी एथोड, कैथोड जो वो है नेगेटिव, तो कैथोड से जाएगा एंड लीव्ड बाय एनोड, ठीक है। हालांकि यहाँ पे क्या होता है, वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है एक्सटर्नल वे में, और यहाँ पे सॉल्यूशन के थ्रू होती है। ये चीज आपने याद रखनी है, ध्यान में रखनी है। फाइनली कमिंग अप टू द spontaneity. So what is the spontaneity? So spontaneity is the degree of self-occurring nature of a reaction. So basically the electrochemical reaction or electrochemical cell is a spontaneous in nature, and the electrolytic cell is a non-spontaneous in nature. It means it requires some external force in the form of energy, electric charge, electrical current, anything is required. Finally, salt bridge. This is also an important term which distinguish between these two terms, between electrochemical cell and electrolytic cell. The salt bridge is required in the electrochemical cell and it is not required in the electrolytic cell. I hope आपको समझ में आ रहा है। अब थोड़ा डायग्राम को भी ध्यान से देख लेते हैं। वैसे तो आपको पता चल ही गया है कि इस डायग्राम में क्या क्या है, ठीक है। जनरली एक चीज हमेशा याद रखनी है कि ये जो सोल्ट ब्रिज होता है, सोल्ट ब्रिज होता है, इसके जो सॉल्यूशन होता है वो पोटाशियम KCl ही लिया जाता है। हमें यहाँ पे इन्होंने गलत दिया है, यस KCl, यहाँ पे इन्होंने NO3 नेगेटिव लिया है। जनरली KCl लिया जाता है, बट आप NO3 को भी ले सकते हैं, बट आपने याद रखना कि KCl को ही प्रेफर किया जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इस साइड से इस साइड है, यानी कि आप मान के चलो इस साइड से इस साइड अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो जो करंट है वो कुछ इस तरीके से चलेगा, करंट जो है वो कुछ इस तरीके से चलेगा। अब सिमिलरली ये हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में देखा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जैसे यहाँ पे कंटेनर है, कंटेनर में हमने क्या लिया हुआ है, मोल्टन NaCl, क्या लिया है, मोल्टन NaCl। जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को एंटर करवाया जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके अंदर एंटर होंगे, तो जो NaCl होगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की फॉर्म में, तो ये क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई किया जाएगा, तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे सप्लाई किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो रहा है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। तो सोडियम जो होगा वो इस रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा और फाइनली सोडियम जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे Cl नेगेटिव, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जा रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट हो रहा है, या फिर बोल रहे हैं कि इस तरीके से फ्लो है, पॉजिटिव टू यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, Cl नेगेटिव जो होंगे वो इकट्ठे होने लग पड़ेंगे। सो दैट इज व्हाई दिस होल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दिस मैनर। अब इनर्ट इलेक्ट्रोड अगर हम लेते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं, तो यहाँ पे भी अगेन हम देख सकते हैं एक्वस NaCl, यहाँ पे लिया है हमने मोल्टन NaCl, यहाँ पे लिया है हमने एक्वस NaCl। एक्वस NaCl में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, Cl2 और यहाँ पे होता है H2। वाई, बिकॉज Na पॉजिटिव जो होता है, Na पॉजिटिव जब Na पॉजिटिव Na2 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, पहली बात, और Na2 एग्जिस्ट नहीं करता। सेकेंडली Na जो है वो सॉलिड फॉर्म में ही रहता है, सोडियम जो है वो सॉलिड फॉर्म में ही रहता है या आयंस फॉर्म में रहता है। बट क्लोरीन के पास एक टेंडेंसी होती है दैट क्लोरीन कैन फॉर्म Cl2 विच इज अ मोर स्टेबल एंड अल्टीमेटली इट इज अ गैस, सो इट लीव्स द सॉल्यूशन, एंड दैट इज व्हाई यहाँ पे जो गैस होती है वो लीव हो रही होती है, और सिमिलरली यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो लीव हो रही होती है। बट यहाँ पे हाइड्रोजन कैसे आई, क्योंकि दिस सॉल्यूशन इज एक्वस, ये जो सॉल्यूशन है ये एक्वस है, और ये सॉल्यूशन जो है ये सिर्फ मोल्टन है, यहाँ पे NaCl ही है और यहाँ पे NaCl प्लस वाटर है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। फाइनली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब हमने थोड़ा सा डिफरेंस देख लिए, थोड़ी सी सिमिलैरिटीज देख ली, थोड़े से पोस्टुलेट्स देख लिए। अब हम इसको डिटेल्ड में स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बिकॉज बेसिकली द मेन स्टडी इन दिस चैप्टर इज ओनली अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी है बट थोड़ा है, उसका अमाउंट जो है या वेटेज जो है वो थोड़ी सी कम है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वी गोना स्टार्ट विद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सो ए डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज द इलेक्ट्रोकेमिकल cell. Other features of the electrochemical cell are there is no evolution of heat. There is no evolution of heat. अब यहाँ पे क्या होता है, जब हमें पता है कि केमिकल चेंजेस होते हैं, just wait, yes, जब केमिकल चेंज होते हैं, केमिकल चेंजेस
ठीक है, तो क्या होता है वहाँ पे, इवोल्यूशन ऑफ हीट होती है। क्या होती है? इवोल्यूशन ऑफ हीट। सो अल्टीमेटली जब केमिकल चेंज होगा तो वहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ हीट होता है। बट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, केमिकल चेंज तो होता है बट यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की जो ट्रांसपोर्टिंग होती है उसके कारण केमिकल चेंज होता है। और एंड दैट इज द मेन प्रिंसिपल बिहाइंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सो दैट इज व्हाई देयर इज नो इवोल्यूशन ऑफ हीट इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, नो इवोल्यूशन। एंड इसी कारणवश, या फिर आप इसको और भी इसके, जैसे ये जब एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो ये काफ़ी आप बोल सकते हो कि इसको कमर्शियल स्केल पे बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, ठीक है, एज ए एनर्जी प्रोवाइडर। फाइनली द सॉल्यूशन रिमेन्स न्यूट्रल ऑन बोथ साइड्स। व्हाई? बिकॉज वी हैव एडेड सोल्ट ब्रिज एंड दिस इज द मेन पर्पज ऑफ सोल्ट ब्रिज। कभी भी अगेन मैं वही टर्म डिफाइन कर रहा हूँ कि केमिस्ट्री में हर एक टर्म या पर्टिकुलरली साइंस में हर एक टॉपिक, हर एक टर्म, हर एक इंस्ट्रूमेंट की अपना सिग्निफिकेंस है। फालतू में किसी ने भी किसी की सजावट के लिए नहीं जोड़ा जाता है, किसी का डेकोरेशन या इसके लिए नहीं दिया जाता है, उसका एक रेलेवेंस होता है। सो अगेन यहाँ पे जो सोल्ट ब्रिज क्या करता है, उसको न्यूट्रल रखने में, सॉल्यूशन को न्यूट्रल रखने में हेल्प करता है। एंड द रिएक्शन एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टॉप आफ्टर सम टाइम। यहाँ पे फ्लो होगा, क्या होगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप आफ्टर सम टाइम। अब इससे क्या पता चलता है, ये लाइन तो हमें पता ही है, इसका मतलब ये होता है कि बैटरी जो होती है वो कुछ समय बाद क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। हमें क्या करना पड़ता है, या तो उसको रिचार्ज करना पड़ता है, अगर रिचार्जेबल है, और नॉन रिचार्जेबल है तो हमें उसको साइड में उसको जाके फेंकना पड़ता है, या उसको पर्टिकुलरली जहाँ पे उसका ये होते हैं, जहाँ पे उसको रिसाइकल किया जा सकता है उसके पार्ट्स को, या अच्छे से डिकम्पोज किया जा सकता है, वहाँ पे देना पड़ता है, ठीक है, ताकि इन्वायरमेंट में कोई इशू ना आए। फाइनली जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से की जाती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, किस तरीके से की जाती है, वो अभी हम पढ़ेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस डायग्राम। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है बेसिकली ये सेल, मैं थोड़ा इसकी डायग्राम बना देता हूँ। दिस इज नोन एज द जिंक कॉपर स्टैंडर्ड सेल। और होता क्या है, यहाँ पे दो कंटेनर्स होते हैं, एक कंटेनर ये होता है, एक कंटेनर ये होता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वो होता है जिंक सल्फेट, और यहाँ पे क्या होता है, कॉपर सल्फेट, ठीक है। ये इन्वर्टेड, ये हमने मान लेना है सोल्ट ब्रिज है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, KCl। अब यहाँ पे क्या होगा, ये आ गई एक रोड, यहाँ पे भी आ गई ये दूसरी रोड, ठीक है, और अल्टीमेटली ये इस तरीके से कनेक्ट हो चुकी होती है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे आप कोई भी डिवाइस यूज़ कर सकते हो, जैसे वोल्ट मीटर यूज़ कर लिया, एमीटर यूज़ कर लिया, या गैल्वेनोमीटर यूज़ कर लिया। नाउ यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड होती है दैट इज नोन एज द जिंक इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड होती है दैट इज नोन एज द कॉपर इलेक्ट्रोड। सो जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड का ये जो होल सेल बनता है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब होता क्या है, अब आपने देखा होगा कि जब हमने इस पूरे सेल को बनाया, ठीक है, तो इसमें क्या हमें कितना समय लगा। हालांकि ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो गई, ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं होती है, यहाँ पे हमें एजम्पशन करना पड़ता है। व्हाई? बिकॉज कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, या फिर जब तक हमें उसकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के डाटा को अगर एनालाइज रेफरेंस में ना ले तो हम बता ही नहीं सकते कि कौन एनोड है, कौन कैथोड है। यहाँ पे ये भी हमें पता नहीं था इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, तो आपको क्या करना पड़ा, यहाँ पे पूरा शो करना पड़ा, ये चीज़ क्या है, यहाँ पे क्या है, ये क्या है, वो क्या है। सो इसको जब आप एक कॉम्पैक्ट वे में, एक इजी वे में लिखना चाहते हो ताकि जल्दी से लिख भी पाएँ और उससे समझ भी पाएँ, तो उसी को बोलते हैं हम जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें दो तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहले होता है दो परपेंडिकुलर लाइंस विच इज नोन एज द सोल्ट ब्रिज, ये हमेशा लिखनी होती है, स्टार्टिंग यहीं से करनी है। एक साइड राइट हैंड साइड में लिखते हैं हम रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, और यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ सेल आ गया, यहाँ पे रिडक्शन हाफ सेल हो गया। अब स्टार्टिंग में भी हमने देखा था कि जब दो सेल्स को कंबाइन किया जाता है, ठीक है, ये दो कंटेनर्स को कंबाइन किया जाता है, तब एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की असेंबली प्रोवाइड होती है।
तो यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन हाफ सेल जब हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले लिखेंगे हम वहाँ पे जो एनोड है, ठीक है, उसको। तो एनोड में क्या होती है, जिंक, और जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है वहां पे जिंक की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 में। तो जिंक, ये जो भी इलेक्ट्रोली होगी, कॉपर भी ले सकते हैं हम, यहाँ पे कॉपर नहीं ली थी, यहाँ पे जिंक की थी, तो जिंक, उसके बाद एक परपेंडिकुलर लाइन, उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आपको पता है कि जब जिंक है वो तो सॉलिड है, और सॉलिड की जो कंसेंट्रेशन होती है वो 1 होती है, तो आप ना भी लिखो कोई बड़ी बात नहीं, बट जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसकी कंसेंट्रेशन होती है, एंड यू हैव टू मेंशन इट, सो दैट इज व्हाई वी हैव पुट लाइक दिस। नाउ जब कॉपर की बात करते हैं, जो रिडक्शन हाफ सेल है, यहाँ पे क्या हो रहा होता है, रिडक्शन हो रही होती है। तो रिडक्शन में सबसे पहले जो हम आयंस हैं उसको लिखते हैं, वहां पे आयंस को बाद में लिखा गया था, और यहाँ पे आयंस को पहले लिखा जाता है। अब क्यों लिखा जाता है वो भी मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे Cu जो है, बिकॉज कॉपर सल्फेट में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, तो अल्टीमेटली यहाँ पे लिखेंगे +2, उसके बाद उसकी जो कंसेंट्रेशन है, और साइमल्टेनियसली उसके एक परपेंडिकुलर बाद उसको सॉलिड स्टेट से रिप्रेजेंट कर देंगे। सो दिस इज ए कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इससे हमें पता भी क्या चलता है, और हम क्यों लिखते हैं जिंक को पहले या एनोड को पहले, फिर उसकी कंसेंट्रेशन को, और कैथोड को लास्ट में लिखते हैं, इसका क्या कारण होता है। यस, जस्ट वेट। सो यहाँ पे हम देखते हैं, अब जैसे ये लिखा हुआ है ना, हम इस चीज को यहाँ पे दोबारा से लिखते हैं, जिंक 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, एंड कॉपर। अगर हम कंसेंट्रेशन को नहीं रखते हैं, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, फिर लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा होता है, दैट जिंक इज कन्वर्टेड इनटू जिंक 2 पॉजिटिव। जो जिंक है वो जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, और ये कैसे करेगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लूज करेगा। और कॉपर 2 पॉजिटिव साइमल्टेनियसली दूसरे कंटेनर में क्या कर रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कॉपर सॉलिड बना रहा होगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड हो रहे होंगे। तो इससे हमें बहुत सारा आइडिया पता चल जाता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। ऐसे नहीं बोल सकते आप, क्योंकि पहले लूज होगा ना, तभी तो गेन होगा। ऐसे तो नहीं पहले गेन हो जा रहा है, पहले वो लूज होगा। सो दैट इज व्हाई वी हैव पुट जिंक और द ऑक्सीडेशन हाफ सेल फर्स्ट, then salt bridge, then reduction half cell, and in particularly in the oxidation half cell we have put the metal or the solid state in the first place, then we have put the ions with along with its concentration. Finally in the right hand side of salt bridge we have put the ions with its concentration, and finally we have put the solid state of that ion. So this is a complete representation of an electrochemical cell, and in the same scenario with the same method we can represent other electrochemical cell like that. Now coming up to the Y convention, cathode is represented on the right hand side and anode is on the left hand side. एक कन्वेंशन भी आप मान के चल सकते हैं। कन्वेंशन क्या होता है, ज़्यादातर ऐसे तो हमें पता है कि एनोड जो होती है वो यहाँ पे क्या होती है, नेगेटिव, और कैथोड जो होती है वो पॉजिटिव। बट हमें कुछ सेल को भी इस तरीके से बनाना होता है कि जब सेल की डायग्राम रिप्रेजेंटेशन करनी होती है, तो यहाँ पे आपने याद रखना कि लेफ्ट में रखनी होती है हमने एनोड को, और कैथोड को किस में रखना होता है, राइट में। किस में रखना होता है, राइट में क्या करना होता है, कैथोड को। इससे हम एक फॉर्मूला जब हम ई नोड सेल बनाते हैं तो वो थोड़ा इजी भी हो जाता है अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर हम इस नोटेशन को थोड़ा फॉलो कर लेते हैं। Coming up to the functions of a salt bridge. So what are the functions of salt bridge? So basically it completes the circuit and allows the flow of current. It completes the circuit and allows the flow of current. It maintains the electrical neutrality on both sides, जो कि मैंने पिछली स्लाइड में भी बताया था आपको, that it maintains the electrical neutrality, न्यूट्रल रहता है उसके pH को. And finally salt bridge. Salt bridge generally contains a solution of strong electrolytes such as potassium nitrite, potassium chloride etc. तो हमने वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में KNO3 देखा था, बट जनरली जो KCl है उसको प्रेफर किया जाता है. वाई? बिकॉज द ट्रांसपोर्ट नंबर्स ऑफ पोटाशियम एंड Cl नेगेटिव आर ऑलमोस्ट सेम. नाउ ये ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होते हैं और फर्दर जो उसके टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.
जैसे हम ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, लाइक दैट। ये हमें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो टिल देन, thank you once again, and if you have any kind of doubt, please let me know. You can ask through email or through my WhatsApp number given here. So thank you once again, and if you again have any kind of doubt related to this whole topic, so kindly let me know. Thank you.